I will stick to the social science part, right? ठीक है. Let's start with the political science. देखो political science में basically तुम्हारे पास दो books हैं. One is what your class 9th, that is what your democratic politics 1, and second one is what your democratic politics 2. तो ये दो books तुम्हें cover करने हैं, right? अगर मैं we are going to start with what class 9th, right? तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल हमारे पास 5 चैप्टर है, राइट? चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? थोड़ा शुरू में मैं स्लो जाऊंगा, राइट? एंड देन आई विल कीप अप माय स्पीड. तो शुरू में थोड़ी फैमिलियरिटी हो सब्जेक्ट को लेके, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, राइट? सो दिस इज व्हाट द so we will discuss, we will do some of the questions related to this topic which was asked in previous year stage 1, right? Not stage 2, stage 1 में ऐसे questions जो आए हैं वो हम लोग देखेंगे, right? Okay, so let's start with that. डेमोक्रेसी को पहले डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिविक्स, एक वर्ड आता है, सिविक्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. सिविक्स इज बेसिकली व्हाट यू कैन से इट्स अ सबसेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट? ठीक है. और सिविक्स बेसिकली क्या बताता है तुम्हें? तो ये तुम्हें इन्फॉर्म करता है तुम्हारे राइट्स के बारे में और तुम्हारे ड्यूटीज के बारे में, राइट? ठीक है. सो इफ यू सी, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन्स अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज दे एंजॉय विद इन द स्टेट, राइट? सो इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ सिविक्स, राइट, so you are a common man, we all are a common man, right? Not you, I am also a common man, right? And अगर civics का education है, basic education, right? So in that case we can say that we are what? Aware citizen, right? Or you can say what? We are more informed citizen, right? ठीक है ना? So we are, you can say, more informed, right? Or you can say aware. And awareness is very important. So that's why the word is what here, ideally. Normally ऐसा होता नहीं है. How many of India में वैसे भी अगर तुम देखो, right? ठीक है. So 100% लोग तो यहाँ पे लिटरेट ही नहीं है, right? Right? तो कितने लोगों को सिविक्स का नॉलेज होगा, right? बहुत कम लोग होंगे. मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड में मान के चलो, अगर मैं लिटरेसी रेट की भी आसपास बात करूँ, राइट, तो 65% के आसपास लोगों को तो लिटरेसी रेट में आते हैं वो 65%, राइट? ठीक, अराउंड. एंड उनमें भी अब कितने लोगों को है जो सिविक्स का नॉलेज है, राइट, या पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है, राइट? सो वेरी फ्यू पीपल विल बी देयर, राइट? ओके. बट फॉर एन अवेयर सिटीजन, फॉर इन्फॉर्म सिटीजन, द नॉलेज ऑफ सिविक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज जब आप अवेयर होगे, राइट, तभी तो आप एक अच्छी गवर्नमेंट चुनोगे जो इस पूरे देश को रूल करेगा, आपको भी रूल करेंगे, राइट? ठीक है ना? एंड दे विल टेक गुड डिसीजंस, राइट? एंड दैट विल बी गुड फॉर व्हाट? कंट्री और नेशन. Though country and nation are what two different terms, right? We will see later on, right? But अभी के लिए हम लोग उसको interchangeably use कर रहे हैं. Anyway, so this is what. Now coming back to the democracy part, right? First we will see what is democracy, right? Then we will see what are its features, right? Okay. An objective and idea of democracy, right? Can anybody tell me what is democracy? क्या होता है democracy? Anyone? What is democracy? From the people to the people. To the people. So democracy is the form of government which people elect rulers. People elect has a right to choose their leader. कोई एक, राइट? कोई एक. हर्षित बोलो. हाँ, हर्षित कुछ बोल रहे थे. हाँ, चलो. हर्षित बोलो. हर्षित. Okay, Akhil and Kritika, I'm coming to you all also. Democracy is the form of government in which people have the right to choose their leader. People have their right to choose the leader. Yes. Okay. Fine. Perfect. Srishti, Shyam, any one of you? बताओ. All persons have right to vote. All persons have right to vote. Is it true? No, sir. Only adults. No, sir. All the eligible members. 18 years. 18 above. Yes. सुनो. This is what. यहीं से एक चीज ध्यान रख लो. कौन है एलिजिबल वोटर्स अपनी कंट्री में? इंडिया में अगर मैं बात करूं तो एलिजिबल वोटर्स कौन से हैं? So eligible voters are what? जिनका एज क्या है तुम्हारा? Above 18. above 18 or 18 years. 18 above. Above 18, right? 18 above, right? ठीक है. So they are what? Eligible voters, right? क्या शुरू से ही ऐसा था? जब से हम आजाद हुए तब से ऐसा है या फिर बाद में कभी चेंज भी हुआ है? सर ये चेंज हुआ, वरना पहले तो डिस्ट्रिक्ट वोटिंग होती थी.
कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का वोट देखा जाता था। नहीं नहीं, मतलब आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ, राइट? ये चेंज हुआ is, सर पहले it 30 was initially it was 21 सर years. पहले 25 years 21 sir. 21 years। Okay, okay, good. It was 21 years, बच्चा, right? It was 21 years, which was converted to what? 18 years, right? This can be a probable question in your exam, right? ठीक है, हाँ? तो ये कब हुआ? This happened in what? 1989 में, ठीक है ना? 1989 में किनकी गवर्नमेंट थी? राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, राइट? ठीक है ना? सो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, और राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, राइट, उन्होंने ही बेसिकली क्या किया था, इस एज को कम किया था 21 से 18, राइट, थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज व्हाट? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट? तो देखो, मैं साइड बाय साइड तुम्हें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताता चलूंगा, राइट? सॉरी, दोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है, ज्यादा इन डिटेल्स नहीं जाना अपने को, क्या हुआ था उसमें, कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, कैसे होते हैं, उसके वेरियस प्रोसीजर्स क्या है। वी आर नॉट सपोज टू गो इन दैट डिटेल, बस तुम्हें ये पता रखना है कि हाँ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, और 1989 में उन्होंने क्या किया था, 21 ईयर्स को 18 ईयर्स में क्या किया था, वो जो वोटिंग, जो एलिजिबल वोटर्स का जो एज है वो डिक्रीज कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना? दैट इज व्हाट। नाउ अगेन कमिंग बैक, डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होता है, राइट? सो लेट्स सी। सर, प्रिजनर्स आर नॉट एलिजिबल, राइट? दैट अगेन डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ प्रिजनर्स यू आर टॉकिंग, राइट? ठीक है ना? ओके, सो विल कम ऑन दैट, राइट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे आते हैं। देखो, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? ठीक है, सो इट्स द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। अगर तुम देखोगे, मोस्टली दीज आर द कंट्रीज, राइट? जैसे यहाँ पे ये प्यू रिसर्च का एक image, right? So if you see 1977, right, these are the countries which are in what? Yellow. They are basically what you can say autocratic, right? ठीक है ना? So they are autocratic. ये जो है blue में, they are what your democratic countries, right? और ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी क्या है उस पर तुम लोग आएंगे अभी। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री अभी के लिए डेमोक्रेटिक हो, बट हो सकता है कि आज से 10 साल बाद ना हो, या से आज से 5 साल बाद ना हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ यू सी इन 1977 if we talk about Pakistan, right, पाकिस्तान वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, पाकिस्तान उस टाइम में डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वहां पे 1977 से 1988 तक मिलिट्री रूल था, राइट? सो 1977 से 1988 तक वहां पे मिलिट्री रूल था, राइट, पाकिस्तान में। इवन 1991 से, मतलब 3 बार लगा है इनफैक्ट, राइट? ठीक है, सो वन इज व्हाट योर 1958 टू 71, 1977 टू 88, and 1999 Kargil war to 2008, right? जब परवेज मुशर्रफ थे, right? So these are what you can say military rule, right? जब उनकी गवर्नमेंट मिलिट्री रूल। हाँ बोलो। नोट भी कर दीजिए इसे। नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल राइट एवरीथिंग, जस्ट लिसन, राइट? ठीक है। सो देखो, 1977 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी, बट नाउ इट इज, इफ यू सी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, एटलीस्ट इट इज ऑन पेपर, इट्स अ डेमोक्रेसी, राइट? पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, पेपर पे तो डेमोक्रेसी ही है, बाकी डेमोक्रेसी है या नहीं आगे जाके बात करेंगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? सो डेमोक्रेसी इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? ठीक है, एंड in the world today, right? And these are the countries in 2017 which follows what? Democracy, right? ठीक है ना? जैसे इंडिया, yes, it is what? Democracy. क्या ये प्योर डेमोक्रेसी है? नो, इंडिया इज नॉट अ प्योर डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट? ठीक है, सो देयर इज अ डेमोक्रेसी इंडेक्स, राइट, जो बेसिकली इंटेलिजेंस, EIU, राइट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, बेसिकली व्हाट वो डेमोक्रेटिक इंडेक्स पब्लिश करती है, राइट? एंड उसमें इंडिया को प्योर डेमोक्रेसी नहीं कहा गया, इट्स इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, इंडिया इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, इवन यूएस इज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, राइट? तो दुख होने की जरूरत नहीं है कि हम ही लोग फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं। यूएस भी फ्लॉड डेमोक्रेसी है, इंडिया भी फ्लॉड डेमोक्रेसी है, चाइना तो डेमोक्रेसी में, इनफैक्ट इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? ठीक है, दो इट्स अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, बट यस, इट डजंट कम अंडर व्हाट? डेमोक्रेसी, राइट? और डेमोक्रेटिक कंट्री के कैटेगरी में चाइना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है? So this is what now
व्हाई इट इज सो? ऐसा क्या है कि मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, राइट? ऐसा क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? ठीक है, सो लेट्स सी. देखो डेमोक्रेसी तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. ओलिगार्की क्या होता है? दैट इज व्हाट रूल बाय फ्यू, राइट? जैसे पोस्ट 1991 यू विल फाइंड दैट यूएसएसआर रशिया में ओलिगार्की है, जो वहां पे काफी जो पूंजीपति होते हैं, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं लोग, दे बेसिकली व्हाट रूल द कंट्री, मतलब उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है. ऑटोक्रेसी दैट इज व्हाट रूल बाय वन, राइट? ठीक है ना? जैसे चिली का एक एग्जांपल है, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, पिनोसे, राइट? पिनोसे, जो भी उसको, आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन, राइट? सो इसको प्रोनाउंस करते हैं PINOSHE, राइट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन से, दैट इज व्हाट ऑटोक्रेसी, राइट? ओके, एंड एनार्किज्म रूल बाय नन, राइट? तो ये तीन तो बस याद रखो. वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, राइट? सो सी व्हाट इज डेमोक्रेसी. पहले इसकी एटिमोलॉजी देखते हैं हम लोग, राइट? सो डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया, राइट? Demos means what? People, and cracia means what? Rule, right? So democracy is basically rule by the people. So it's nothing but rule by the people, जो कई लोगों ने आप में से कहा, and that was right. And it's very well accepted form of definition of democracy is what? One of the most accepted definition of democracy is what? Given by Abraham Lincoln, right? So he was the 16th president of USA, right? And democracy is government of the people, by the people, and for the people, right? ठीक है, so that is what that definition was given by Abraham Lincoln, right? Abraham Lincoln is very famous, right, for one thing. Is something happened when Abraham Lincoln American was the Civil president War. of United States. Sir, American Civil War. Yes, exactly. So ये भी ध्यान में रखना है तुम्हें. It was This over is not slavery. important for your stage 1. Yes, तो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था ओवर स्लेवरी, राइट? ठीक है, so over slavery. So in fact Abraham Lincoln was against slavery, right? And he said once कि if you justify slavery then you can justify anything. मतलब if slavery is not bad, according to him nothing is bad, right? So that means he was against slavery, right? And the American Civil War happened actually due to what? I mean, it was over slavery, right? Okay. Anyway, we are not going in that detail, but इतना तुम्हें याद और पता होना चाहिए कि हाँ, American Civil War जब हुआ था, at that time president was what? Abraham Lincoln, right? ठीक है. That started in 1861, right? American Civil War, right? So this was the definition. Democracy is government of the people. This is OF, right? Of the people, by the people, and what? For the people, right? But there is an image if you see, right, in the NCERT, right? And that says, that's a very funny statement, right? You see, democracy is of the people, right? It's OFF, right? Far from the people, and where they by the people, right? So this is what the definition, right? Okay, how many of you think that this definition is somewhere not exactly wrong in our, I mean, in India? Sir, it's a bit true. It's a bit true in our country. You see, अरे of the people मतलब कितना, आजकल के politicians को हमारी कितनी फिक्र है, you see, right? ठीक है. So how many of them are, right? Obviously things are changing, right? 1990s के अगर टाइम में देख लोगे तो political insensitivity, I would say कि, या फिर पॉलिटिकल इंसेंसिटिविटी मैं कहूंगा कि अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, राइट? बट अभी चूंकि सोशल मीडिया और इनफैक्ट ये कह लो कि अभी जो डिसेमिनेशन होता है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ही फास्ट होता है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट. पहले इतना ज्यादा नहीं हो पाता था, लोगों को पता ही नहीं चल पाता था, राइट? आज की डेट में अगर कुछ हो जाए, राइट, सपोज जैसे एक बार अगर तुम बात करोगे यूपी में क्या हुआ था, राइट? सो इन यूपी व्हाट हैपेंड, इफ यू विल you know, there is a guest house कांड, right? ठीक है. So what happened? There is a political party, right? I will not make it political, right? So I will just, there is a political party A, there is a political party B, right? A ने B को support किया. After some time A ने B से support withdraw कर लिया, right? ठीक है. B जो पार्टी थी, right? B पार्टी के लोग A के MLA के पास आए, right? उनमें से कई लोगों को उन्होंने उठा के ले गए, right? पकड़ के पीटा उन्होंने और उनको ले गए और उनपे साइन करवाया कि you have to support us, right? ठीक है. So that means what you see that अगर वही इंसिडेंस आज की डेट में हो जाए, तो जस्ट यू सी हाउ मच ह्यू एंड क्राई विल टेक प्लेस ऑन सोशल मीडिया, राइट? ठीक है. तो आज की डेट में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है,
ठीक है ना, उसका डिसेमिनेशन बहुत फास्ट होता है, तो still I would say कि political class is what insensitive, there is no doubt about that, right? Okay, ठीक है, until unless अगर उनके उस पे नहीं बनता है, उनकी गद्दी पे नहीं बन रहा है, तब तक वो insensitive ही है. Personal, it's my personal opinion, right? Anyway, so democracies of the people, right? बहुत सारे ऐसे तुम्हें डिसीजंस देखने को मिलेंगे जहां पे गवर्नमेंट बिल्कुल लोगों की कोई चिंता नहीं है, राइट? ठीक है, जैसे द प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, राइट? Now, whether it is the farmer bill is good or bad, that's another matter, right? We can discuss on that, right? But at least the protest is going on, so you should talk with your people, right? Because some people are protesting against it, right? So you should talk with them, right? Or फिर basically क्या है? Then you understand their grievances, right? उनके concern. अगर उनके concern genuine concern है, then amend the laws. If it is not genuine, then try to convince, right? Your expectation is not genuine, right? And definitely ऐसा कोई जो आपका जो concern है वैसा कुछ होने जा रहा नहीं है, right? This law will help you ultimately, right? Okay. So the dialogue is very important, right? So that's why there is what democracies of the people, right? Of means what? There is no dialogue, there is no concern about the people, right? Far from the people, right? Again, and by the people. By means what? जब इलेक्शन आए तो उनके वोट्स को आप खरीद लो, right? Something like that. Anyway, many of the things happens in our country also, right? Okay. But this is the most accepted definition of what? Democracy, right? Okay. Now let's understand democracy. So democracy क्या है? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, right? ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारे पास ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? लोग हैं, people, right? Or you can say citizen, right? So this is what your citizen, right? और citizen क्या होता है? They choose government, right? ठीक है ना? So there is a certain procedure, they choose government, right? Okay. And there is a theory also, right? Social contract theory. So there is a contract between citizen and government, right? ठीक है? So citizen is choosing government, right? By certain procedure, right? Okay. And government will take care of what? Citizen, right? Okay. Through certain method, right? तो यहाँ पे देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. सो गवर्नमेंट जो है बेसिकली दे आर व्हाट? दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, राइट? अगर इंडिया में देखो तो इंडिया में कितने, हाउ मेनी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर? आई मीन देयर आर 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट, राइट? कौन कौन से? फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? उसके बाद State government, स्टेट गवर्नमेंट, राइट? एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यस, ग्राम पंचायत, गवर्नमेंट, राइट? हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट? इसमें पंचायत भी आ जाएगा तुम्हारा और म्युनिसिपैलिटीज भी आ जाएंगे, राइट? ठीक है, municipalities, right? Now I'm telling you, this panchayat is extremely important for your exam, right? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें कुछ टर्म्स जो है तुम्हें, कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें याद होने चाहिए जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट? ठीक है ना? तो पहला क्या है? जो पंचायती राज है, राइट? पंचायती राज, राइट? ठीक है ना? सो बेसिकली व्हाट यहां पे क्या हुआ था, एक तरह से तुम कहते हो कि पावर इज व्हाट? डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या? पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी. नाउ यू हैव डिसेंट्रलाइज्ड पावर, राइट? एंड यू हैव गिवन सम पावर टू व्हाट? योर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, राइट? ठीक है. सो दिस जो ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, राइट, दैट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, देयर इज अ कमिटी एंड दैट इज व्हाट? योर बलवंत राय मेहता कमिटी, राइट? यू हैव टू बलवंत राय मेहता कमिटी, right? Balwant Rai Mehta committee, right? So if you see this particular question, right? So मैंने क्वेश्चंस नोट्स में इसलिए डाल दिया है ताकि जब तुम रिवीजन करो, राइट, तो तुम्हें याद रह जाए, राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन इन, ये सब स्टेज 1 यूपी का ही है, राइट? Who was the chairman of the committee which proposed democratic decentralization and panchayati raj? So answer is what? Balwant Rai Mehta. So this is very important information about what? Your पंचायती राज, राइट? तो एक तो तुम्हें ये इंफॉर्मेशन याद रखना है. सेकंड, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, दैट इज व्हाट? योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यू कैन से. सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, राइट?
दे सजेस्टेड, राइट, ठीक है. ईयर वाज व्हाट? 1957, राइट. पहली बार पंचायती राज जो एस्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट पंचायती राज इन विच स्टेट? एनी आइडिया? पंचायती राज, राज से कोई स्टेट है? राजस्थान. बस तो याद रख लो इसे. फर्स्ट पंचायती राज राजस्थान में आया, राइट, 1959 के आसपास, राइट, ठीक है. सो दिस व्हाट 1959, राइट, ठीक है. लेकिन पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह कब मिली? व्हेन? सो इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कब किया गया? सो पीआरआई, इसको मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोल देता हूं, राइट. So this is again, these 3 points are very important. The probability is very high कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना. कई बार पूछा गया, पिछले अगर 10 साल का पेपर उठाओगे कई बार तुम देखोगे. So पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है तुम्हारा, राइट, ठीक है ना. तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा, मतलब प्रेजेंट तो पहले भी था, बट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद ऑब्वियसली इसका स्टेटस बढ़ जाएगा, राइट. सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, राइट, बाय 73rd, राइट. 73rd में तुम्हारा पंचायती राज एंड 74th इसमें म्युनिसिपैलिटीज, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, ठीक है. और कब हुआ था? सो इट हैपेंड इन 1992 में. ये बिल एक्चुअली देखो 1992 में राज्यसभा और लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया था, राइट, ठीक है ना. 1992 दिसंबर, राइट. तो दिसंबर 1992 इट वाज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, ठीक है. एंड एक्चुअली जो प्रेसिडेंट का जो सिग्नेचर हुआ था वो अप्रैल 1993 में हुआ था, राइट. सो इट बिकेम एन एक्ट इन 1993, राइट. So it became an act, right? So these 3 points are very very important, right? ठीक है. तो अब इस पे क्वेश्चंस अगर मान लो तुम्हें करना हो, देखो तो कुछ क्वेश्चंस यहीं पे कर लेते हैं फटाफट. जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन है. लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. द पंचायती राज सिस्टम बिकेम मोर पावरफुल. मोर पावरफुल मतलब क्या? बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, राइट, इन द ईयर 93. क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, मैं तुम्हें दिखा 1993, राइट, ठीक है. वेरी सिंपल. सेकंड क्वेश्चन, ये इस पे तुम लोग आएंगे, राइट. बी हो गया. द स्टेट इन विच पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट? राजस्थान. तो राज से राजस्थान याद रख लेना, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है. और दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट. यस यस मयंक, आंसर इज डी, राइट. कमिंग बैक. ओके, नाउ सी. तो बेसिकली क्या देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट है तुम्हारे पास. 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, राइट. पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, सिटीजन है, राइट. एंड इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, ठीक है ना. सो सिटीजन विल चूज गवर्नमेंट, राइट, एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ सिटीजन, राइट, विथ बाय कमिंग विथ वेरियस पॉलिसीज, राइट. थोड़ा सा डेमोक्रेसी को हम लोग समझते हैं, राइट, ठीक है ना. सो क्यों जरूरत पड़ी, डेमोक्रेसी आया कैसे होगा, राइट, ठीक है ना. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मान लो तो इस एग्जांपल से हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट, ठीक है. मान लो यहाँ पे अभी हम लोग ऑलमोस्ट 55 लोग हैं, राइट, ठीक है ना. 55 54 व्हाटएवर, राइट. हम लोगों ने या फिर हमें से कुछ 10 लोगों ने एक वो बनाया, उसको कह देते हैं हम क्या, एक ग्रुप बनाया, एक क्लब बनाया, राइट, ठीक है ना. सो लेट्स मेक अ क्लब ऑफ 10 पीपल, राइट. 10 लोगों ने क्लब बनाया. अब क्लब बनाया तो क्लब के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, राइट, ठीक है ना. तो क्या होगा उस केस में, ये जो तुम्हारे पास 10 लोग हैं, राइट, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास 10 लोग हैं, राइट, ये 10 लोग मिलेंगे. अगर मान लो कोई रूल बनाना है, मान लो सपोज कि क्लब के लोगों को घूमने जाना है, राइट, ठीक है ना. घूमने जाना है कहीं पे, राइट. सो सपोज एक केस में ले ले रहा हूँ, क्लब है, मान लो उनको घूमने जाना है, राइट. सपोज, राइट, दे हैव टू गो टू समवेयर, राइट, एनीवेयर. लद्दाख जाना है मान लो, ठीक है ना, लद्दाख, राइट, ठीक है. तो अगर उनको लद्दाख जाना है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, राइट, कि कैसे जाना है, तो बोलेंगे कि सपोज एक गाड़ी करते हैं और गाड़ी से जाते हैं, राइट, ठीक है, या 2 गाड़ी करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, राइट.
तो डिसाइड करना है, किसी को ये आइडिया आया, मैं उनमें से 10 में से किसी एक को आइडिया है कि चलो लद्दाख चलते, राइट, ठीक है, सारे क्लब मेंबर्स, राइट, सब लोग मिले, उसके बाद क्या हुआ कि डिसीजन हुआ, हाँ भाई बताओ अपना अपना ओपिनियन, तो सब ने अपना अपना एक ओपिनियन दिया कि जाना है कि नहीं। मान लो 8 लोगों ने बोला हाँ चलना है और गाड़ी से ही चलना है, राइट, और 2 लोगों ने बोला कि नहीं गाड़ी से नहीं जाएंगे बिकॉज इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ मनी, राइट, एंड वी नीड मनी फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। बट चूंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, राइट, नाउ दे आर इन फेवर टू गो लद्दाख, राइट, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी में उनको भी क्या करना पड़ेगा, आई मीन दे विल हैव टू से कि चलो ठीक है यार जाने का मन नहीं है बट फिर भी जाना पड़ेगा बिकॉज मेजोरिटी ऑफ देम आर सेइंग कि चलो लेट्स गो, राइट, सो दैट मीन्स दे विल गो। नाउ जस्ट इमेजिन दैट फॉर सम रीजन, मतलब कि क्या है कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो इट्स वेरी इजी, राइट, असेंबल हो जाओ, डिसीजन ले लो, राइट, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कह देते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट, इसको हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल दूं, राइट, वैसे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, स्विट्जरलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी यू कैन से, राइट, it's not exactly direct democracy, right? So Switzerland is an example of what, semi direct democracy, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो लोग मतलब अपना ओपिनियन दे सकते हैं एक पर्टिकुलर मैटर पे, राइट, ठीक है ना। सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। और जो ओपिनियन मान लो किसी मैटर पे देते हैं उसका एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है, सुना है तुम लोगों ने इस टर्म को, सुना है एनीवन, प्लेबिसाइट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म? नो सर। सर इन द नेशनलिज्म चैप्टर। सो व्हाट इज प्लेबिसाइट? कभी तुम लोगों ने अगर सुना हो, राइट, हाँ, सुना होगा बिल्कुल प्लेबिसाइट। कभी तुम्हें कश्मीर पे, अगर कश्मीर को तुम पढ़ो, राइट, ठीक है ना, कश्मीर के बारे में कंट्रोवर्सी पढ़ो, सो जनरली पाकिस्तान की तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि प्लेबिसाइट कश्मीर में करवाया जाना चाहिए था, बट एक्चुअली हुआ नहीं। यूएनएससी का रिजोल्यूशन है, राइट, ठीक है ना। सो देयर इज अ रिजोल्यूशन रिलेटेड टू कश्मीर जहां पे यूएनएससी ये बोलती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आई होप यू नो अबाउट दैट, राइट। तो यूएनएससी ये बोलती है कि वहां पे प्लेबिसाइट होना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर दैट, राइट, जो कंडीशंस कभी फुलफिल ही नहीं हुए, ठीक है। पहले तो ये कंडीशन था कि पाकिस्तानी आर्मी को कश्मीर से बाहर जाना है, कश्मीर मतलब मैं इंटायर कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पीओके एंड जो कश्मीर हमारे पास है अभी, राइट, ठीक है ना, इंडियन जेएनके एंड पीओके, राइट। दूसरा था कि उसके बाद इंडियन आर्मी है उनका एक सर्टेन मिनिमल प्रेजेंस होना चाहिए और उसके बाद प्लेबिसाइट होगा। एनीवे आई डोंट थिंक कि प्लेबिसाइट विल टेक प्लेस। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है कि सर्टेन, अगर मैं सपोज कि अभी बोल दूं कि ये क्लास मुझे अभी बंद करना है या फिर इस क्लास को चलते रहने देना है, राइट, तो आई विल आस्क द ओपिनियन, राइट, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट यू कैन से, मैं एक बहुत ही घटिया सा एग्जांपल ले रहा हूं, बट यू कैन से दैट इज व्हाट प्लेबिसाइट, मैं आई एम टेकिंग योर ओपिनियन, राइट, बिकॉज यू आर इन द क्लास एंड यू आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, राइट, ठीक है ना, इट विल अफेक्ट यू इन सम वे, सो दैट इज व्हाट योर प्लेबिसाइट, राइट। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो बेसिकली डिसीजन यू कैन से दैट इज व्हाट थ्रू प्लेबिसाइट यू कैन से, राइट, कि people will give their opinion and on the basis of their opinion, right, the decision will take place, right. But you think now the club has grown to what, suppose it has 1.37 billion people, right. In that case is it possible to meet every day? कि ऐसा है कि मान लो कि सबको लद्दाख जाना है तो मिलते हैं सब लोग, 1.37 बिलियन पीपल मिलते हैं हम लोग, राइट, एंड देन वी विल डिसाइड whether we should go or not, right? It's not possible, right? या फिर कोई भी डिसीजन लेना हो तो हर डिसीजन में सबका ओपिनियन लेना, that will be practically impossible, right? So in that case what they will do, right? So they will choose someone, मतलब क्या होगा कि अब 1.37 को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे 1000 लोग हो गए, राइट, तो वो क्या करेंगे, अब उस क्लब के कुछ मेंबर्स चुनेंगे कि अच्छा they will choose what, I mean वो चूज करेंगे बेसिकली व्हाट कि क्लब का एक सेक्रेटरी बना देंगे, राइट, एक क्लब का डायरेक्टर होगा कोई, राइट, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, राइट, और उनको सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएंगी, राइट, एंड दे विल टेक केयर ऑफ क्लब ऑन बिहाफ ऑफ दीज 1000 पीपल, राइट, ठीक है। सेम थिंग यू कैन से व्हाट, एंड इन दिस केस इफ यू सी, in this case you can say this is what your indirect democracy, right, indirect democracy। तो यहां पे क्या है, लोग डायरेक्ट, चूंकि नंबर बहुत ज्यादा है तो इट्स नॉट
practically feasible to take direct decision, right? So here indirect decision will take place, right? और यहाँ पे जो है people's representative are sitting, right? And they are taking decision on behalf of what people, right? So they are basically what people's representative, right? They are people's representative, right? So they are people's representative, right? मान लो अब people's representative है और वो करप्ट हो जाए, right? मान लो अगर वो करप्ट हो जाए, right? और उन्होंने अगर मान लो कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो क्लब के लिए सही नहीं है या फिर उनके अपने बेनिफिट के लिए, राइट? क्या होगा उस केस में? दो चीजें हो सकती है, राइट? फर्स्ट यू प्रोटेस्ट, राइट? फर्स्ट यू कैन प्रोटेस्ट एंड यू कैन से कि यस वी आर नॉट ready for this because it is harming the collective interest. So it is harming the collective interest of these 1,000 people. So this is not desirable. ये आपको नहीं करना है. और रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है, राइट? तो नेक्स्ट इलेक्शन में जाना है इसका मतलब हो सकता है कि प्रोटेस्ट अगर हो तो वो उस टाइप की एक्टिविटीज को ना करे, राइट? या फिर क्या कर सकते हैं अगर मान लो तब भी वो लोग कर रहे हैं, राइट? They are not, now bothering about the protest. मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है प्रोटेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट? ठीक है ना? In that case, what you can do? You can remove them in next election. So just remove them in what? Next election and bring someone else. So you can relate this story with the same with our country also, right? ठीक है ना? कि मान लो कि कंट्री में अब इतने सारे लोग हैं कि पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअली मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करे हर एक सिंगल डिसीजन में, राइट? ना इनफैक्ट एक्सपर्टीज भी नहीं है लोगों की, राइट? ठीक है ना? एक्सपर्टीज भी नहीं है, राइट? सो मान लो अगर कोई सिविल एविएशन से मामला है उस पर डिसीजन लेना है और किसी को अगर सिविल एविएशन के बारे में आइडिया ही नहीं है या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर बिल है, राइट? ठीक है ना? और वहां पे अगर तुम्हें डिसीजन लेना है तो जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता, राइट, how they will be able to take the decision or how they will be able to vote on behalf of that, right? So that means what कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कम से कम इंडिया जैसे कंट्री में तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट मीन्स हियर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज देयर. हम लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, राइट? ठीक है ना? और इलेक्ट करते हैं और वहां पे देयर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, राइट? कैसे इलेक्ट करते हैं ये सब तो मोस्ट ऑफ द कंट्री, यस शिवम, most of the country follow indirect democracy, right? ठीक है? Most of the country follow indirect democracy. Switzerland is one example. फ्लॉट डेमोक्रेसी भी है सर? क्या बोल रहे हो? यही फ्लॉट डेमोक्रेसी है? कौन? No, it's not flawed democracy. Flawed democracy का क्या मतलब हो गया वो हम लोग आगे देखेंगे अभी. Flawed democracy मतलब कि डेमोक्रेसी को तुम सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे. We will see that, don't worry. But indirect democracy सही डेमोक्रेसी हो सकती है. There is a possibility, right? You go to Scandinavian countries, right? जैसे Scandinavian countries, स्वीडन हो गया तुम्हारा, नॉर्वे हो गया, there it's a wonderful democracy, right? ठीक है ना? वहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, so you will find कि जितने भी मतलब अगर तुम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, राइट? HDI देख लो, राइट? ठीक है ना? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, तुम कोई भी इंडेक्स उठा लो, राइट? देयर यू विल फाइंड एट द टॉप दोज कंट्रीज. तुम्हें या फिर नॉर्वे का नाम दिखेगा या स्वीडन दिखेगा या तुम्हें फिनलैंड दिखेगा या डेनमार्क दिखेगा, राइट? All these countries you will find at the top, right? तो वहां पे भी indirect democracy है, but that democracy is wonderfully working, right? Okay, so that's not a flawed democracy. Flawed democracy हमारे यहाँ है, right? US में है, right? But it's not there in their country, right? And that too according to Economist Intelligence Unit, right? EIU, right? जो democracy index publish करती है हर साल, right? Okay. So this is what direct and indirect democracy. I hope you are getting this. Direct democracy को एक और नाम हम लोग दे देते हैं. That is what your representative democracy. Excuse me, sir. Right. So this is also called as what? Representative democracy. हाँ बताइए. What is the population Yes, of please. Switzerland? बोलो. What is the population of Switzerland? I don't know. You have to check, right? ठीक है. Sir? So but कम ही होगा, I'm sure. हाँ बोलो. Sir, I'm बोलो. So direct democracy is representative democracy. Yes. Representative सर democracy. इनडायरेक्ट हाँ, होना चाहिए सर हाँ. वैसे तो. रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है कि पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव, राइट? ठीक है ना? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. इनडायरेक्ट में पीपल आर नॉट, पीपल का रिप्रेजेंटेशन कोई और कर रहा है. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज व्हाट योर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हो. हाँ, और कोई बोल रहा था, बताओ. अरे व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी मतलब कि दिस इज
is a form of government in which rulers are elected by the people, right? ठीक है ना? तो अगर तुम डायरेक्ट अगर इलेक्शन कर रहे हो, राइट, ठीक है ना, डायरेक्ट मतलब कि इनफैक्ट अगर कोई भी वो पर्टिकुलर डिसीजन भी ले रहा है तो इन दैट डिसीजन योर व्हाट you have a say. That is what your representative or direct democracy. Or indirect democracy is what you're basically, जहाँ पे तुम किसी को चुन रहे हो और वो तुम्हारे बिहाफ पे रूल कर रहा है. हाँ, मयंक कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे बताओ, राइट? What you were asking? नो सर, अप्रोक्स सर पूछ रहे थे सर, द पॉपुलेशन ऑफ स्विट्जरलैंड अप्रोक्स. Even I don't know. I mean, I will not, guess, right? एक बार देखना पड़ेगा. But मुझे लगता है 1 million से तो कम ही होगा. I think so, right? It will be much lesser than 1 million. चेक करना है, चेक कर लेते हैं, राइट? लेट्स चेक इट, राइट? स्विट्जरलैंड का कितना है? स्विट्जरलैंड का पॉपुलेशन, राइट? Population. Sir, it's around 8.6 million. 8.6 million है, right? So, sorry, my guess was not perfect. Okay, so it is what 8.6 million है. तभी मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड is not, it's semi-direct democracy, right? ठीक है ना? It's not direct democracy, right? ठीक है? It's not a direct semi. हाँ, बोलो. सर इनडायरेक्ट होना चाहिए सर, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सर उसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं ना सर. क्या बोल रहे हो? सर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इनडायरेक्ट होनी चाहिए ना सर. नहीं, रिप्रेजेंटेटिव सर क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे ना सर. यस सर. Just a minute, wait. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में it is what people's representative, right? So it should be representative democracy. Okay, I will come on this. Okay, it will be representative democracy. It's not direct, right? Sorry. So it will be representative democracy, right? Okay. Fine. Now coming back, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? Now this definition allows us to separate democracy from that is what the form of government, right? That clearly not democratic, right? तो कौन-कौन से government non-democratic है, right? जैसे अगर तुम बात करो आर्मी रूल्स ऑफ म्यांमार, राइट? प्रेजेंटली अगर तुम आर्मी रूल्स, म्यांमार में अभी कौन है? आर्मी रूल चल रहा है या फिर वहां पे गवर्नमेंट है? बताओ तुम. आंग सान सू की का नाम सुना है? मिलिट्री रूल चल रहा है, राइट? 21st ऑफ फरवरी, राइट? ठीक है ना? 21st ऑफ फरवरी 2021, राइट? ठीक है. तो यहाँ पे आर्मी ने क्या किया? लास्ट 2020 में एक इलेक्शन हुआ था, राइट? तो जो आंग सान सू की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी पार्टी थी, उनको थ्राइविंग मेजोरिटी मिली, राइट? और उनका जो अपोजिट पार्टी थी, राइट, which were actually supported by the army, right, म्यांमार आर्मी, वो लोग बहुत बुरी तरीके से हारे, राइट? तो आंग सान सू की was supposed to take the charge, right, but ultimately क्या हुआ यहाँ पे? There is a military coup हुआ, right? So this is what your military coup, and military coup की वजह से basically now the military is running the show in Myanmar, right? Aung San Suu Kyi is very important figure because she won the Nobel Prize in what? 1991, right? ठीक है. तो ये भी तुम लोग ध्यान में रखना कि Aung San Suu Kyi won the Nobel Prize in 1991, Nobel Peace Prize की मैं बात कर रहा हूँ, right? So this is what the military coup. So you can say that army rules of Myanmar. So these army persons, they are not, elected by the people, right? So that is what not the democracy, right? If you talk about Chile, so Chile maybe 1973 से 1990 में they were under the dictatorship of what? Pinochet, right? So this is also not a democracy. I mean, at this particular time, it was not a democracy. Now it's a democracy, right? If you talk about the Kingdom of Saudi Arabia, right? So Kingdom of Saudi Arabia is basically what? Also not a democracy, right? Maybe you have heard about MBS, Mohammed bin Salman, right? Who is the crown prince, right? And now he's taking so many, reformative steps in Saudi Arabia, right? Like in just 2-3 years back, now in Saudi Arabia, women can also drive. Earlier it was not there, right? ठीक है ना? तो women drive नहीं कर सकती थी 2018 से पहले, but now they can drive, right? Okay.
So that is what the kingdom of, so they don't have what? Democracy. Okay. सर Now, हाँ बोलो. क्वेश्चन था सर, तो जो म्यांमार में हुए इलेक्शन होने के बाद भी मिलिट्री coup हो गया, तो सर लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? There are protests that is going on in Myanmar. कितने लोग मरे हैं उसमें? See the news, definitely. The protests are going on, right? लेकिन मिलिट्री रूल इतना पावरफुल है, मतलब अब वही बात होगी, प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं. देखो म्यांमार में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट? ठीक है. Yes, protests are going on, right? But still military rule is continuing, right? काफी सारे लोग भी वहां मरे. Anyway, so this is what, ये तुम सऊदी को देख लो, तो सऊदी में बेसिकली क्या है तुम्हारे पास? This is what absolute monarchy है. So it's not democracy, right? Okay. Now, जैसे ये जो particular अगर तुम देखोगे, this is what the cartoon, right? So this cartoon is basically what it depicts. So cartoon क्या बताता है यहाँ पे देखो, this is what, ये इराक invasion के बारे में बताता है, right? इराक invasion कब हुआ था? यूएसए ने कब इन्वेड किया था इराक? यूएसए इन्वेडेड इराक in 2003, right? उनको, and on the charge of weapons of mass destruction, right? So the charge was what? Weapons of mass destruction, right? Okay, so that is what Iraq invasion, right? Weapons of mass destruction. और उसके बाद यहाँ पे by the help of what? US Army, right? तो US Army ने क्या किया? डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया, राइट? ठीक है. एंड इसलिए, बट दैट डेमोक्रेसी वाज व्हाट बेसिकली व्हाट यू कैन से अ फ्लॉट काइंड ऑफ थिंग. तो यहीं पे जो ये जो कह रहा है कि देखो ये जो डेमोक्रेसी का एक तरह से मतलब जो पोल ये यूएस आर्मी उठा रही है, राइट? एंड दिस मींस व्हाट, यहां पे अगर इसको पढ़ोगे तो इट लुक्स लाइक मॉकरी, राइट? सो इट्स नथिंग बट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. सो दिस इज मॉकरी ऑफ व्हाट? डेमोक्रेसी, राइट? Anyway, let's talk about India. India में क्या है? अगर तुम preamble देखो, right? तो preamble में basically तुम्हें एक word मिलेगा democratic, right? So there is a word democracy in the preamble, and there is a word republic also, right? So definitely here the government is what we people what choose the government, right? ठीक है. What is the meaning of republic? Republic का क्या मतलब होता है? The head of the state is an elected. हमारा कोई हेड होगा. Yeah. So head of state क्या होता है? Basically what you can say, President. a sovereign state President. which is having elected head of state, that is president, is called as a republic, right? ठीक है. So head of state तुम्हारा क्या होता है? Republic होता है. और head of state अगर hereditary है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? Monarchy बोल देते हैं, right? ठीक है ना? Clear? So this is what your monarchy and republic में this is what the basic difference, right? Okay. So यहाँ पे जो head of state है वो क्या है? अपने president जो है वो elected है. Elected election दो तरीके का हो सकता है. One is what your direct election भी हो सकता है, and one is what your indirect election हो सकता है, right? So in India indirect election takes place, right? President का direct election होता है, indirect election होता है? Sir, indirect. President के election में हम लोग वोट करते हैं? Indirect. Indirect, right? So in India indirect election of president takes place, right? सर ये प्रीएम्बल क्या होता है? Place, right? ठीक है. Preamble is basically what, you know, you can say it's basically what the vision of our forefathers, right? कि वो इंडिया को कैसा देखना चाहते थे, right? ठीक है. तो अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर तुम एक तरह से एक पेज में अगर तुम्हें उसको उसका अगर तुम्हें निचोड़ चाहिए, राइट? उसका एक सार चाहिए, उसका एक समरी चाहिए, that you can say it's a preamble, right? ठीक है ना? And it's a part of constitution, right? Earlier it was assumed that it's not, but nowadays we believe that preamble is a part of constitution, right? So we consider it as a part of constitution, right? ठीक है. preamble में दो तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, right? ठीक है ना? जैसे क्या है? basically what? sovereign democratic republic, right? So this word sovereign democratic republic, right? These two words were added in 1976, right? Through a constitutional amendment act, and that is what your 42nd constitutional amendment act.
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स जोड़े गए, राइट? सो द वर्ड इज व्हाट योर, बेसिकली फर्स्ट वन इज व्हाट योर socialist, second one is what your secular, right? So these two words were added, right, via 42nd Constitutional Amendment Act 1976. अच्छा, वैसे 1976 में क्या था, क्या चल रहा था इंडिया में? What was that? At the time of what? Emergency, right? So this was the time of what? Emergency. तो emergency के time में तुम्हारा क्या था? These two words were added, right? ठीक है. एक और था, यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले unity of the nation था, तो that is what you see here, unity and integrity of the nation. So there is a word integrity that was added also, right? So that was also added, right? ठीक है. So that is what you, again 42nd. So there is a word and integrity, right? तो integrity word भी add हुआ था, right? Again with the same constitutional amendment act. तो ये तुम्हें ध्यान में रखना, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है that is important for your exam, क्वेश्चन आ सकता है. इनफैक्ट एक बार एनटीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो ये तुम्हारे पास ये जो वर्ड्स हैं sovereign, socialist, secular, democratic and republic, right? They are in which order? So you should know the order also, right? ठीक है. So order is what? You can write like this S3 and DR, right? तो कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करके तो क्वेश्चन कर सकते हो. D is what your democratic, R is republic, and S3 से क्या हो गया तुम्हारा sovereign, socialist and what? Secular. So order is also important, right? Order is also important, right? Right. Okay. सर S3 का मतलब बता दीजिए सर. Features of democracy. क्या बोल रहे हो? सर S3 का सर. S3 मतलब क्या? S3 मतलब 3S है बच्चा. S3 का मतलब 3S. एक S से तुम्हारा क्या हो गया? सॉवरेन हो गया. एक S से क्या हो गया तुम्हारा? सोशलिस्ट हो गया, राइट? और एक S से तुम्हारा क्या हो गया? सेकुलर हो गया. That's it, right? So sovereign, socialist and what? Secular, right? And then democratic republic है. याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, S3DR, right? ऐसे याद रख सकते हो. Okay. Now we are coming to the features of democracy, right? तो features of democracy हम लोग देखते हैं, right? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people, right? ठीक है ना? And if they are not taking decision in favor of people, right? People have right to remove them after or in the next election, you can say, right? ठीक है ना? Or they have a right to protest also. These are not just in the letters but also in spirit. इसका क्या मतलब है? Not just in letters but also in spirit, right? That means what? कि केवल ये लेटर में नहीं दिखना चाहिए. जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, राइट? ठीक है. So if you talk about Pakistan, so there you will find, and why I'm taking again and again Pakistan, because the example is given in your book also, right? तो पाकिस्तान में अगर तुम देखो तो आज की डेट में भी वहां की जो मिलिट्री रूल है that is what very strong, right? So their military rule is very strong, right? मतलब पाकिस्तान को मिलिट्री ही रूल करता है एक तरह से. इट्स रूल्ड बाय मिलिट्री, यू कैन से, राइट? मतलब अगर तुम देखो तो पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ बाजवा, मिस्टर बाजवा, राइट? ठीक है ना? कमर जावेद बाजवा, राइट? ही इज द कमर जावेद बाजवा, नॉट इमरान खान, राइट? इसलिए कहीं कहीं तुम ये भी देखोगे, राइट? कहीं कहीं ये भी देखोगे कि जैसे कि कभी कभी ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग डील नहीं कर सकते, राइट? व्हाई वी कैन नॉट डील? बिकॉज वी हैव अ डेमोक्रेसी. पाकिस्तान हैज आल्सो अ डेमोक्रेसी, राइट? लेकिन उनकी पावर इस्लामाबाद में नहीं है, राइट? ठीक है ना? देयर पावर इज नॉट इन इस्लामाबाद, देयर पावर इज इन रावलपिंडी, राइट? वेयर द एक्चुअली हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज देयर, राइट? ठीक है. सो कभी कभी ये स्टेटमेंट देखोगे कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल पावर है दैट इज व्हाट इन रावलपिंडी एंड नॉट इस्लामाबाद, राइट? Not Islamabad, right? ठीक है. So the power is in what? Rawalpindi and not Islamabad, right? ठीक है. So Rawalpindi, that is what army headquarter of Pak army headquarter, you can say. So on paper, if you will see, Pakistan is a democracy, right? So at least in letters, right? In written form, you can say, okay, Pakistan is a democracy. It has a constitution, right?
But is it in the spirit also? No, it's not. Because the power is not in the hands of the government, which is selected by the people, right? The power is somewhere else. And that is what they are not selected. Qamar Javed Wajpayee is not selected by the people, right? So that means you cannot say that Pakistan is what? Your democracy. The same thing is what for China also, right? China को भी अगर तुम देखो तो वहां पे भी elections हैं. There is a mixed election. Ground level पे कह सकते हो direct election है. उसके बाद जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे indirect election है. It's very complex, a little complex, right? China में election procedure. I'm not going in that detail, but China भी कह सकते हो कि वहां पे भी power is concentrated what in the hands of few people, right? Okay. So power is concentrated in the hands of few people, right? म्यांमार में भी आज की डेट में तुम यही देख लो कि म्यांमार में भी जो पावर है that is what in the hands of army, which is not selected or which is not basically what elected by the people, right? So that means they are in later, even you can say that Pakistan is a democracy. Even China say that we are a democracy, right? In later, but in spirit they are not, right? Myanmar definitely it is not. So not just in latest, but also in spirit they should have what? Democracy, right? Okay. Now, democracy का क्या क्या फीचर है? तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा? इलेक्शन. So that is what free and fair electoral competition, right? So this is very important because people are actually choosing their rulers, right? ठीक है ना? Those who are going to rule, right? Those who are going to make laws on behalf of them, right? ठीक है ना? So that means free and fair electoral competition is very, very important, right? तो कभी-कभी जैसे इंडिया में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है, राइट? तो तुम देखे होगे कभी-कभी न्यूज़ सुनते हो जैसे बूथ कैप्चरिंग टाइप का वर्ड आता है, राइट? Booth capturing, right? So that means what? If booth capturing is taking place, that means what? It's not free and fair electoral competition, right? If you see, just go around 90s में देखोगे, you will find plenty of examples of booth capturing, right? In UP and Bihar, like a state, right? ठीक है? So that means what? Booth capturing was a phenomenon. It's not a free. I mean, it doesn't represent what free and fair electoral competition. और अगर free and fair electoral competition नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जनता जिसको चुन रही है वो तो सही तरीके से वो चुन के ही नहीं आ रहा है. सो इट कैन नॉट बी अ डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, क्लियर है? सो दैट इज व्हाट योर लाइक चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में भी क्या है, देखो जैसे चाइना में अगर तुम बात करोगे तो चाइना में भी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, राइट, कोई भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, बट जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं those people are basically what selected by CPC, that is what Communist Party of China, right? So before contesting election, a candidate needs the approval of the CPC, right? So that means what? It's not a democracy. मतलब CPC को जिसको मन करेगा वो उसी को बोलेगी लड़ने के लिए, right? इसका मतलब क्या है कि CPC, that is what Communist Party of China has a hold on people who are going to what fight the election. इसका मतलब जो विन जीत के आएगा उस पे भी एक तरह से CPC का होल्ड हो गया, राइट? ठीक है ना? बट एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या कहती है? कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन, मतलब अगर सही डेमोक्रेसी है वहां पे, राइट? इफ इट्स नॉट अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, देन एनीबडी कैन fight the election, right? And that particular election will be what? Free and fair electoral competition. That's why you see the role of election commission becomes very important in our democracy, right? ठीक है ना? So role of election commission, it becomes very, very important. Role of election commissions becomes very important, right? जैसे इंडिया में भी तुम देख लो, अगर कुछ होता है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कुछ उल्टा सीधा बोलती है, राइट, तो बहुत ही ज्यादा ह्यू एंड क्राई होता है, बिकॉज इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, then free and fair electoral competition is compromised. And if free and fair electoral competition is compromised, that means what? Democracy is compromised, right? So this is very, very important. That is what one of the most important feature of what? Democracy. Free and fair electoral competition, right? Okay. So a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of what? Losing, right? तो जो पावर में है उनके पास फेयर चांस हो लूज होने का, राइट? जैसे अगर तुम बात करो चाइना में, राइट, चाइना में एक ही पार्टी है, वो क्या लूज करेगी? CPC. और भी पार्टीज हैं चाइना में, और भी पार्टीज हैं, राइट? ठीक है ना? बट अगर वो पार्टी CPC से अलाइंड ना हो उनका थॉट प्रोसेस, सो दे कांट एग्जिस्ट. तो दैट मीन्स कि पार्टीज तो हैं बट उनका एग्जिस्टेंस CPC का जब तक है हाथ उनके सर पे तभी तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट? एवरी टाइम CPC विल विन, राइट? And CPC will rule the country, right?
So that is again what? Not a feature of democracy, you can say. So जो party power में है, they have a fair chance of what? Losing, right? And if it is so, that means what? You can say that their free and fair electoral competition is what? Taking place, right? क्योंकि जो power में अगर वो हार जा रहे हैं, that means what? Yes, you can say free and fair electoral competition is taking place, right? Okay. Now, so holding election of any kind is just not sufficient. केवल election आपको नहीं करवाना है, election fair and free भी होना चाहिए, right? ठीक है ना? From all other externalities. Okay. Now, second one. Second feature of democracy is what? One person, one value, right? ठीक है. So that means what? These are the features जो तुम्हें ध्यान में रखना है, right? One person, one vote and one value, right? वहीं पे एक टर्म आता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट? ठीक है. और उसको हम लोग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी बोल देते हैं, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? मींस व्हाट? यू हैव द वोटिंग राइट. You have the voting right irrespective of your caste, sex, right, gender, regardless of wealth, income, gender, social status, race, ethnicity, or any other restriction, right? ठीक है ना? So that means what? कि regardless of your wealth, income, earlier it was not there. Before independence ऐसा नहीं था. Before independence, wealth was one of the criteria, right? Gender was one of the criteria. In fact, gender was one of the criteria in many other countries. अगर तुम देखो US, तो US में भी 1920 से पहले, before 1920, वहां के वुमेन्स को राइट नहीं था, राइट? वहां के वुमेन्स जो थी, मतलब उनको ये जो एक तरह से क्या कह सकते हो कि एडल्ट सफरेज, राइट? वुमेन सफरेज, यू कैन से. देयर वाज नो वुमेन सफरेज, राइट? There was no women suffrage, right? 1920 से पहले. In fact, अगर तुम बात करो, और इंडिया में कब है? Starting from the beginning, right? हमने कोई भी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया स्टार्टिंग से ही, राइट? तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब से इलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट इलेक्शन दैट टुक प्लेस इन 1952, सम ऑफ द पार्ट इन 1951, और मोस्टली इट टुक प्लेस इन व्हाट? 1952, राइट? तो इफ यू टॉक अबाउट इलेक्शंस, राइट? ठीक है. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, राइट, उन्होंने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. बट सच डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर इन यूएस. यू विल नॉट बिलीव इन स्विट्जरलैंड व्हाट हैपेंड, राइट? स्विट्जरलैंड में 1959 की मैं बात कर रहा हूं, 1959, राइट? 1959 में अराउंड 63%, राइट? और 63 और 57%, एनीवे इट्स नियर अबाउट 60%. 60% of the men in Switzerland, they stood against women's suffrage, right? Stood against women's suffrage, right? ठीक है ना? और हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट को इस तरह से देखते हैं कि वेस्ट तो क्या है, मतलब वेस्ट इज लाइक कि एवरीथिंग इज गुड देयर, राइट? ठीक है ना? इट्स नॉट. So there is a statement also, east is not west, ठीक है ना? So east is not west, right? ठीक है ना? That means what? कि हम लोग वेस्ट को, वेस्ट मतलब जनरली वेस्ट को ऐसे दिखाया जाता है कि वेस्ट इज व्हाट? मोस्ट लिबरल, राइट? सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे, राइट? वहां पे सब कुछ एकदम फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे, वहां की सोसाइटी में. इट्स नॉट लाइक दैट. और ईस्ट को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की इसी रीजन में, राइट? ठीक है ना? सो दैट मीन्स व्हाट? ईस्ट इज नॉट वेस्ट, राइट? लाइक दिस यू कैन गिव वन एग्जांपल, राइट? कि हमने वुमेन सफरेज स्टार्टिंग से दिया है, राइट? बट दे गिव इट व्हाट? मेनी कंट्रीज लाइक यूएस, स्विट्जरलैंड, यू कैन से, राइट? दे गिव इट मच लेटर. आई मीन यूएस में इंडिपेंडेंस कब? 1776 में हुआ, बट देयर वुमेन्स राइट केम इन 1920 और आफ्टर, राइट? ओके. So that is what universal adult suffrage, right? Of course, age का restriction है, that is what 18 years, that we have already seen that. And पहले 21 year था, by using 61st Amendment Act, we shifted to what? 21 to 18, right? ठीक है. So that means what? One person, one vote and one value. That is one another feature of democracy, right? मतलब ये नहीं कि तुम religion के base पे discriminate कर रहे हो, right? कि if this particular person is from this religion only, then it has right, I mean, she or he has right to vote, right? That is also not a feature of democracy, right? So if such discrimination is taking place, right, then in that case it is not a democracy, right? तुम बोलोगे सर 17 years के साथ भी हो रहा है. No, 17 year के साथ कोई
यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट, ठीक है ना। ये तो बस बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्टेन एज होना चाहिए ताकि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी, सो दैट यू कैन चूज अ राइट पर्सन, राइट, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है मतलब 3 या 4 ईयर बच्चे को उसको क्या ही समझ होगी पॉलिटी की, तो उसको हम वोटिंग राइट नहीं दे सकते, राइट, ठीक है। सो यू गेट अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग इन अ सर्टेन एज, राइट, एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू वोट। हाँ, वंस यू आर of 18 years, right, then irrespective of the state or ethnicity or age or sex or whatever is your income, right, ठीक है ना, whatever is your class, right, middle class, lower class, upper class, you will get that particular right. Okay, so that is what your one person, one vote, one value. And if it is not taking place, that means it's not a democracy, right? Okay. कई एग्जांपल्स हैं, जैसे 2015 में Saudi Arabia women did not have a right to the vote, right? ठीक है. So that means you can say before 2015 in this particular aspect Saudi Arabia में डेमोक्रेसी नहीं थी. वैसे तो सऊदी अरेबिया में आज की डेट में भी डेमोक्रेसी नहीं है, राइट, मोनार्की है, वो हमें ऑलरेडी हमने देखा है पीछे. ठीक है. Now next is what feature of democracy is what rule of law and respect for rights. So what is basically rule of law? तो rule of law का जो concept था वो डाइसी ने दिया था, राइट, ठीक है ना. So rule of law basically what has its origin in England and it was given by Dicey, right? And what is that? तो absence of arbitrary power, ठीक है ना. Arbitrary power मतलब किसी को भी मैं पकड़ के सीधे जेल में बंद नहीं कर सकता हूँ, राइट, ठीक है ना. So there is a certain procedure, right? So no man is punished except for a breach of law, right? That is what your rule of law, right? Second, equality before law. तो law के सामने सब लोग equal हैं, whether it is rich or poor or you know high or low official or non-official, right? Politicians, we people, everyone is same, right? ठीक है. There are certain privileges. That's another matter, right? Parliamentary privileges. We will talk about that, right? But those privileges are for some reason, right? ताकि सब कुछ smoothly चलता रहे, right? But law के सामने we all are what same, right? So that is what equality before law, right? And the primacy of the rights of individual, right? Just these 3 points, simple ऐसे याद रखो कि basically rule of law is what? Basically absence of arbitrary power and equality before law. These are the 2 points just you remember, okay? So that is what rule of law. And respect for the rights of what? People, right? हाँ, बताओ कोई डाउट है? Respect for rights of people. जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, क्या पॉपुलर गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक हो सकती है? हो सकती है. पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर तुम इंदिरा गांधी की बात करो, राइट, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या था? अगर तुम December 3rd to 16 December, right, 1971, what happened in this particular point of time? इस दौरान कुछ हुआ था? इमरजेंसी 71 में नहीं बचा, 75 में लगा था. There is a liberation war. इंडिया पाक वॉर इसी टाइम में हुआ था ना. भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, दूसरी लड़ाई हुई थी, Yes, sir. पहली तो 65 में हुई थी, राइट. सेकेंड वॉर कब हुआ था? 1971 में. तो उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थी हमारी? इंदिरा गांधी थी, राइट. तो इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो इस वॉर के बाद जब बांग्लादेश बना, राइट, तो बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी वाज लाइक एनीथिंग, राइट, काफी ज्यादा, राइट. सो दैट मींस व्हाट बेसिकली कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी, सो शी वाज वेरी पॉपुलर, राइट. बट फाइनली उन्होंने क्या किया? 1975 में जब डेमोक्रेसी आई, राइट, सॉरी डेमोक्रेसी बोल रहा हूं, 1975 में जब उन्होंने क्या किया? इमरजेंसी लगाया, राइट. सो 1975 में जब इमरजेंसी लगी, राइट, सो दैट मींस व्हाट? पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं. पॉपुलर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तो हो ही सकती है. अगर तुम लोगों के लिए अच्छा काम करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी पॉपुलर, राइट. बट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स वेयर पॉपुलर गवर्नमेंट becomes what? Undemocratic. And there is one example is what? Your Indira Gandhi, right? See what? Imposed emergency in 1975, right? ठीक है. Okay. Though she was very popular at that point of time, and this was one reason, right? 19 और भी कई reason थे, right? ठीक है. But this was one of the reason. Okay. जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उन्होंने किया था, right? 69 में. So that was also a very popular move, and that was a good move, in fact, right? बांग्लादेश का भी बनना, it's a good thing for India. You just imagine अगर बांग्लादेश नहीं होता आज की डेट में, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के पास होता तो हमारी क्या हालत होती, राइट. बहुत ही
घटिया से एक मैं बनाऊंगा इंडिया का मैप, राइट, ठीक है। सो दिस इज यू सी, राइट, दिस इज व्हाट इंडिया, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बांग्लादेश है, राइट, और यहाँ पे तुम लोगों ने चिकन स्नेक का नाम सुना होगा, राइट, ठीक है। इधर तुम्हारा पाकिस्तान है, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारा बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, राइट, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि हम लोग, और ऊपर में चाइना है। जस्ट इमेजिन कि अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान के अंडर रहता, राइट, जिसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो आजाद हुआ 1971 में, राइट, एंड दिस वाज एक्चुअली वेस्ट पाकिस्तान विच इज द करंट पाकिस्तान, राइट। तो हमारी हालत क्या होती है, हमें 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ता, 3 फ्रंट, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, तो बांग्लादेश का बनना इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। एनीवे, तो 1975 में इमरजेंसी आई, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ, राइट, एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स फॉर द सिटीजंस, राइट। हाँ बोलो सर, ये इमरजेंसी का मतलब क्या है सर? इमरजेंसी का मतलब है कि ऑल द पावर इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ सर्टेन पीपल, राइट। सेंटर के हाथ में सारी पावर आ जाती है, राइट, ठीक है, सारी पावर इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, राइट, ठीक है ना। काफी सारे तुम्हारे कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी रिवोक कर दिया जाता है, राइट, ठीक है ना, राइट, सारे नहीं, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, राइट, क्लियर है। सो इमरजेंसी के टाइम में मतलब कि दैट इज व्हाट, कि तुम्हारे राइट्स को लिमिट कर दिया जाता है, राइट, टू अ गुड एक्सटेंट यू कैन से, राइट, दैट इज व्हाट इमरजेंसी, राइट, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes. ओके, नाउ तो डेमोक्रेसी के लिए हमने क्या पॉइंट देखा, 3 पॉइंट्स देखे हमने। वन इज व्हाट, रूल ऑफ लॉ and respect up for rights of the citizen, right, one person one vote and one value, right, and third we saw what, free and fair electoral competition, right. So these are the features of democracy, right, okay, एक बार पढ़ लेना इसको, ये वही चीज लिखी हुई है, right. Now next we are coming to why democracy, right. So is there negative of democracy, ऐसा कुछ है जो negative of democracy है, right, ठीक है। So yes, people say कि there are certain negative aspects of democracy also, जैसे leaders keep changing in a democracy, this leads to what, instability, right, ठीक है ना। तो ये instability लाता है। इनफैक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो कि अगर डेमोक्रेसी में हर 5 साल पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, राइट, तो एक नई गवर्नमेंट आई। अब जो एक नई गवर्नमेंट आई है, मान लो एक नई पार्टी आई, राइट, तो उसके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं अगर वो नई पार्टी है। जैसे दिल्ली की बात करो, राइट, वैसे आम आदमी पार्टी इज डूइंग वंडरफुल, राइट, इन दिल्ली, राइट, बट अगर आम आदमी पार्टी की बात करो तो पहली बार वो आई थी, तो उनके पास कोई भी ऐसा एक्सपर्टीज नहीं था, राइट, पहले रूल करने का, राइट। बट अगर कोई वैसी गवर्नमेंट आती है या वैसी पार्टी आती है जिन्होंने पहले भी रूल कर रखा है, तो पहले की रूल से उन्हें लर्निंग मिलेगी और उस लर्निंग को वो फर्दर यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वन थिंग यू कैन से कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, तो दिस लीड्स टू व्हाट, इनस्टेबिलिटी आल्सो, और थोड़ा सा एक्सपर्टीज का भी इशू आता है, राइट। सो इशू with what, expertise also you can say, right. जैसे most of the people say कि Mr. Modi when he came to Delhi, right, from Gujarat in 2014, right, उनका तो पहला कुछ साल, पहले 5 साल इनफैक्ट समझने ही में निकल गया कि दिल्ली में चल क्या रहा है, राइट, ठीक है ना, दिल्ली में चीजें वर्क कैसे करती हैं। Many people say that, right. So that is what you can say, that is what issues with what, expertise, right. And this leads to what, instability, मतलब long-term stability, somewhere it is what important also for the development part, right. So that is, you can say, one of the negative part of democracy, right. Next, democracy is all about political competition and power play. There is no scope for what, morality. तो यहाँ पे moral principles नहीं है, मतलब booth capturing हो गया, somehow you have to win by hook or by crook, right. तो मतलब no morality। जैसे एक certain party है तो there is no morality, right. जैसे एक certain party, again I will not take the name of the party, but A and B है, right. So A knows that a certain section doesn't vote for me, right, ठीक है ना। So that means what, communal harmony को उन्होंने disturb कर दिया, right, या फिर communal tensions को बढ़ा दिया, right. तो communal tension बढ़ेगा तो क्या होगा, बाकी के जो पार्ट हैं, मान लो कि कम्युनिटी X थी और कम्युनिटी Y थी, Y A के लिए वोट करती है, X A के लिए वोट नहीं करती है। अब कम्युनल टेंशन बढ़ा तो Y क्या करेगी, Y A के लिए और वोट करेगी, राइट, क्योंकि Y को थोड़ा डर है X से, अब ठीक है ना, तो Y को अगर डर है X से तो इट विल वोट मोर फॉर व्हाट A, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिटन हियर, देयर इज नो मोरालिटी हियर, राइट। नो मोरालिटी मींस व्हाट,
पैसे वैसे भी खिलाते हैं, राइट? तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत जगह होता है ऐसा कि पैसे या फिर लिकर्स का सेल बढ़ जाता है उस टाइम में, राइट? ठीक है ना? तो इस तरह से किसी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक, दैट मींस व्हाट, यू हैव टू रिटेन द पावर, यू हैव टू व्हाट, विन द इलेक्शन, राइट? So there no morality, it's all about the win, that's it, right? And that is, you can say, one of the negative of democracy, right? So many people have to be consulted in a democracy, that leads to what? Delays, right? ठीक है? देखो, डेमोक्रेसी में एक सर्टेन प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, राइट? ठीक है? जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर तुम शशि थरूर की बुक पढ़ोगे, पैक्स इंडिका, राइट? सो देयर इज अ बुक पैक्स इंडिका, तो वहां पे इंडो चाइना रिलेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इंडो चाइना रिलेशन के बारे में कहा है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना को अगर तुम देखो, राइट? इंडिया और चाइना को, राइट? इंडिया और चाइना को अगर देखो आप, राइट, तो 1960s तक इंडिया चाइना एक ही लेवल पे थे, राइट? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, राइट? बट नाउ यू सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना में 1979 ऑनवर्ड्स एक तो पॉलिसी भी उनकी चेंज हुई, राइट? ठीक है ना? उन्होंने एक पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी अक्वायर की, राइट? ठीक है ना? और वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर पूरा शुरू हो गया, राइट? ठीक है ना? चाइना में, राइट? दूसरा था कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज व्हाट योर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो मान लो उनको, अगर मान लो कोई डैम बनाना है, सपोज इफ दे हैव टू मेक अ डैम, तो उस डैम से कितने लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, कितने लोग नहीं डिस्प्लेस हो रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है, किसको नहीं पड़ रहा है, दैट डजंट केयर, राइट? ठीक है ना? सिंपली वो उन लोगों को डिस्प्लेस करेंगे और वहां पे डैम बन जाएगा, राइट? Because for larger interest, dam is important. But think about India. Is it possible to make such dam in India, right? It's not possible. क्योंकि इंडिया में जब तुम डैम बनाने जाओगे तो पहले तुम्हें लोगों को रिप्लेस करना है, राइट? और लोगों को अगर तुम्हें रिप्लेस करना है तो यू विल हैव टू गो वाया सर्टेन प्रोसीजर, राइट? तुम डायरेक्टली नहीं रिप्लेस कर सकते हो, राइट? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, राइट? यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम सर्टेन प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो डैम बनने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, राइट? So there will be certain delay for sure, right? तो इसका मतलब ये एक नेगेटिव पार्ट हो गया, बट इसके पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी का हर चीज नेगेटिव ही है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुम बात करो 1960s में चाइना में बहुत सारी फेमिन्स आई, राइट? चाइना में फेमिन, राइट? वहां पे कई लोग मारे गए, राइट? क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट को लोगों की फिक्र ही नहीं थी एक तरह से, क्योंकि इट वाज नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट? उनको ऐसा तो नहीं, उनको नहीं पता कि उनको नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन में जाना है, लोग उनको चूज करेंगे, राइट? और दे विल कम इन द पावर, राइट? ऐसा तो है नहीं उनके साथ। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में गवर्नमेंट वाज सेंसिबल टुवर्ड्स द पीपल, राइट? तो यहाँ पे फेमिन डेथ क्या हुआ है इंडिया में? काफी कम हुआ है फेमिन डेथ इंडिया में, राइट? और चाइना में फेमिन डेथ बहुत ज्यादा थे, राइट? सो यू कैन से दिस इज व्हाट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? वी विल डिस्कस अबाउट दैट. And this is what the negative aspect, where the delay is what taking place, right? So this is what so many people have to be consulted in a democracy. Issue with expertise, right? Expertise मतलब क्या कि issue with expertise. मैंने कहा अगर तुम सोचो कि अगर मान लो कोई 20 साल से अगर मान लो सेंटर में काम कर रहा है, तो वो जानता है एक्चुअली कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, राइट? तो अगर कैसे वर्क करता है उसको पता है, राइट? ठीक है ना? तो उसको पता है, दैट मींस व्हाट, ही विल बी एबल टू टेक डिसीजन, ही और शी विल बी एबल टू टेक डिसीजन मोर फास्टली, राइट? बट कोई अगर नया बंदा आया हो, नया पार्टी मान लो इलेक्ट होके आई हो पावर में, राइट? और अगर वो आई हो तो उसको क्या पता चलेगा? पहले तो आएगा तो वो एक्चुअली प्रोसेस को समझेगा, और प्रोसेस को समझने में भी उसे काफी टाइम लग जाएगा, राइट? और हो सकता है कि इतना टाइम लग जाए प्रोसेस समझते समझते नेक्स्ट इलेक्शन आ जाए, और नेक्स्ट इलेक्शन में फिर वो हार जाए इलेक्शन, और फिर एक नई पार्टी आ जाए, लाइक you're getting this point. So that is what I'm telling you, that is what issue with expertise, right? That is the point, right? Elected leaders do not know the best interest of the people, right? So there is an association of democratic reform. हाँ बोलो. Sorry, association of democratic reforms का तुमने नाम सुना होगा. तुम्हें you will find that many elected leaders are what? They are corrupt. They have some criminal background also, right? And they don't care about the interest of the people, right? They mostly care about them, and that is quite true for India, right? Okay. तो यहाँ की political class quite insensitive है लोगों को लेके. Democracy leads to corruption for it is based on electoral competition, right? अब ऐसे समझ लो. It's a you can say that it's a what? Circle, right? Election है. Election के लिए क्या होगा? तुमको पैसे चाहिए, मनी चाहिए. इलेक्शन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, राइट? पैसा कौन देगा? कॉर्पोरेशन देगी, राइट?
कॉर्पोरेशन के पास पैसा है, कॉर्पोरेशन ने तुम्हें पैसा दिया, राइट? कॉर्पोरेशन ने तुम्हें पैसा दिया, राइट? और उन पैसों को तुम यूज करके क्या करोगे? करप्शन करोगे, राइट? ठीक है ना? सो दैट यू विल डू करप्शन। करप्शन इन द सेंस मतलब कि रिग्ड इलेक्शन, इलेक्शन को तुमने रिग कर दिया, राइट? इलेक्शन को तुमने रिग कर दिया, राइट? एंड देन यू केम इन व्हाट? पावर, ठीक है? फिर से तुम्हें इलेक्शन में जाना है, फिर से तुम्हें मनी चाहिए, लेकिन जो कॉर्पोरेशन तुम्हें पैसा दे रही है उसका अपना भी तो इंटरेस्ट होगा, वो ऐसे थोड़ी ना तुम्हें पैसा देगी, उसका अपना भी इंटरेस्ट होगा भाई। तो इस कॉर्पोरेशन का जो इंटरेस्ट है वो क्या इंटरेस्ट है कि भैया जब आप पावर में आना इस रिग्ड इलेक्शन के बाद, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ माय इंटरेस्ट। दैट मींस जब कॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट अगर उसके लिए, क्योंकि उन पार्टीज को भी पता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे जब इलेक्शन लड़ना है, सो आई नीड द फंडिंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस, दैट मींस आई हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, एंड इफ आई हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट, समवेयर इट विल व्हाट? अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, राइट? सो इट्स, you can say it's a circle, right? Circle complete. And that's how it happens in India. Be it any party. I'm not talking about one party, right? सारी पार्टी के साथ यही है, ठीक है ना? आप पार्टी A और पार्टी B सबके साथ यही है, right? Okay. Ordinary people don't know what is good for them. Now this is the point, right? Now let's understand this point. जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मेकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, राइट? यू नो दैट, राइट? फर्स्ट सेशन जो हुआ था 9th of December 1946 को पहली बार वो लोग बैठे थे डिस्कशन के लिए, राइट? और डिस्कशन चला कुछ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, राइट? ठीक है? तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब वो बना रहे थे उस टाइम में क्या था? उस टाइम में ये सोचा गया कि क्या हमें सबको देना चाहिए वोटिंग राइट, या फिर हमें सर्टेन सेक्शन को देना चाहिए जो एजुकेटेड है, राइट? और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें सबको वोटिंग राइट देना चाहिए। तो बहुत लोग इसको नेगेटिव भी मानते हैं, राइट? बहुत लोग इसको नेगेटिव इस तरह से लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, राइट? ठीक है ना? जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको तो ज्यादा नॉलेज है नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, सिविक्स के बारे में, राइट? हु इज करप्ट, हु इज नॉट, राइट? किसकी पॉलिसी सही है, किसकी पॉलिसी सही नहीं है। अगर तुम मान लो एजुकेटेड ही नहीं हो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता है, तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, राइट? तो तुम बेसिक उनका जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसको कैसे समझ पाओगे, राइट? ठीक है ना? तो उसको अगर तुम्हें नहीं समझ पाओगे तो फिर वोट कैसे करोगे, लाइक दैट? हाउ मेनी ऑफ अस read, right, election manifesto, right? To be very frank, nobody read that, right? Mostly इंडिया में जो वोटिंग होती है that is on the line of caste or religion or you know reason based, right? Regional based party है तो इसको elect करना है, like that, right? Hardly few of them care about what? The election manifesto, right? तो बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि सबको नहीं देना चाहिए, राइट? वोटिंग राइट, हमें वोटिंग राइट सर्टेन सेक्शन को देना चाहिए जो एजुकेटेड सेक्शन है, राइट? ठीक है ना? राइट? एंड इसलिए दे से दैट इट्स अ नेगेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? वेयर एवरीवन वोट्स, राइट? और वहां पे काफी ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, राइट? और उनका वोट बेसिकली व्हाट वेस्ट हो जाता है। जैसे न्यूटन एक मूवी है, अगर तुम देखोगे, राइट? तो उस न्यूटन मूवी में एक छत्तीसगढ़ में काफी इंटीरियर में मॉइस्ट एरिया होता है, उसमें वो लोग जाते हैं, राइट? और सर्टेन लोग जब वोट करने आते हैं, वहां के जो आदिवासी लोग होते हैं, राइट? उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली कि कौन है, किसको वोट करना है, कौन सही है, कौन गलत है, तो वो किसी भी बटन पे दबा देते हैं, राइट? सो यू कैन रिलेट दैट मूवी, दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मूवी, राइट, टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ऑर्डिनरी पीपल, राइट? आई एम नॉट सेइंग ऑर्डिनरी मींस व्हाट? ऑर्डिनरी इन द सेंस ऑफ द नॉलेज, राइट? आई एम नॉट डिमीनिंग देम, राइट? They are extraordinary in their own sense, right? Okay, so much better than us in a way, right? They are not polluting this global earth, right? And you know how this global warming and you know environment change is taking place. अभी तुम लोगों ने देखा होगा example, कितनी जगह floods आई हैं, चाइना में flood आया, यूरोप में flood आया, like that, right? So these are the important points. Coming back again, is there any positive of democracy? Definitely, we saw one positive of democracy कि चाइना में 1960s में कई लोग मारे गए, right? फेमिन के अंदर, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां की गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव नहीं थी, राइट? बट व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, राइट? सो इंडिया में नहीं हुआ बिकॉज गवर्नमेंट वाज सेंसिटिव, बिकॉज दे न्यू कि हमें फिर से इलेक्शन के लिए लड़ना है और इन्हीं लोगों के पास जाना है री इलेक्शन के लिए, राइट? सो वी हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दीस पीपल, राइट? वी कांट बी इनसेंसिटिव, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट पॉजिटिव ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या? मोर अकाउंटेबिलिटी, राइट? सो अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट? मोर टुवर्ड्स द पीपल, राइट? Improves the quality of decision making, right? So there are certain checks and balances, right? Okay, so that you can say improve the quality means what? कि इतना checks and balance है कि गलत decision तो नहीं आएगा. Decision will be what? Right? Maybe it can take some time, right?
but it will be in the favor of what? People, right? Okay. Next. Provide method to deal with differences and conflicts, right? तो मान लो अगर conflicts हैं in between people, right? or in between reasons, right? certain, तो ये भी है कि democracy gives you a platform, right? democracy gives you a platform to basically what? deal with differences and what? conflicts, right? This is a line in democracy. No one is a permanent winner. No one is a permanent loser, right? Okay. So that's it. Next. बस हो गया ये topic almost. We are done, right? Why democracy? So democracy is basically what enhances the dignity of citizens, right? It gives you the right to choose. ये तुम्हें एक तरह से right देता है कि तुम choose करो कि तुम्हें कौन rule करेगा, right? ठीक है ना? That is what principle of political equality you can say, right? Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake, right? तो अगर मान लो कि तुमने एक गलत बंदे को चुन लिया, right? ठीक है? So definitely you have a right to protest और next election में उस बंदे को तुम हटा सकते हो, right? Okay. So democracy क्या कर सकता है? It's what correct its own mistake. तुम्हें एक option देता है. Let's suppose monarchy की अगर हम बात करें, monarchy में तुम्हारे पास एक king है, right? ठीक है ना? अब अगर वो king गलत आ गया, suppose, और उसके हाथ में सारा का सारा power जो है concentrated है. Now you just imagine कि क्या हो सकता है, right? So that particular in that case काफी गलत हो सकता है, right? तभी एक डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, राइट? ही वाज द हीरो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? फ्रॉम ब्रिटेन साइड, राइट? सो डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स दैट हैव बीन ट्राइड, राइट? तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे ऑल आर बैड, बट इन दैट बैड द बेस्ट फॉर्म इज व्हाट? योर डेमोक्रेसी, राइट? ओके. नाउ लाइक अब्राहम लिंकन का भी देख सकते हो, एक है कि you can fool some of the people all of the time, all of them some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time, right? That means what? एक certain point के बाद democracy में इतनी maturity आ जाएगी, right? That those people will start what? Electing good persons, right? Those who are in power and making good laws for the people, right? Okay. So these are what the points. Let's see the questions, right? फटाफट questions कर लेते हैं. पहला question. Here is some information about 4 countries, right? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे. इसके बेस पे समझाता हूं कैसे आ सकते हैं. Here is some information about 4 countries. Based on this information, how would you classify each of these countries, right? With democratic, undemocratic, and not sure, right? Country A, people who do not accept the country's official religion do not have a right to vote. बताओ, democratic, undemocratic? Undemocratic because you undemocratic, right? Because you are actually basically what? Discriminating, right? Differentiating people on the basis of what? Religion, as far as the right to vote is concerned, right? ठीक है ना? So that is what? Yes, it is undemocratic. Next. Next क्या हो जाएगा? Democratic or not democratic? सर नॉट श्योर. No. Not sure. The same party. देखो, the same party has been winning elections from past last 20 years, right? Not sure. ठीक है ना? क्यों? हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, right? तो बहुत अच्छा काम कर रही हो. There are 2 possibilities, right? Government is doing wonderful work. तो गवर्नमेंट अगर wonderful work कर रही है, right? In that case, definitely people will choose that government, right? क्यों नहीं choose करोगे, right? If the government is doing wonderful, right? Like for example, if you see West Bengal में ज्योति बसु काफी दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे, right? ठीक है ना? Gujarat में if you see the government of BJP, right? So it's almost from 2001, it's the BJP government, right? ठीक है ना? Because BJP government is working good in Gujarat, right? At least the people of Gujarat, they think, right? That they are doing good, right? And that's why they are choosing that party, right? तो मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टी लास्ट 20 ईयर से इलेक्शन जीत रही है, दैट मींस देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, राइट? या तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हो, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इलेक्शन को रिग कर दे रही हो, हर बार इलेक्शन रिग्ड हो जा रहा हो, राइट? सो इन दैट केस व्हाट? देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, बोथ पॉसिबिलिटीज. तो एक केस में अगर बहुत अच्छा काम कर रही हो तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, और अगर रिग्ड इलेक्शन हो रहा है तो अनडेमोक्रेटिक. तो इसलिए आंसर विल बी व्हाट? यू आर नॉट श्योर, राइट? Ruling party has lost in last 3 elections. Democratic. अरे डेमोक्रेटिक. सारा पावर अगर रूलिंग पार्टी के हाथ में है, राइट? और तब भी वो हार जा रही है, दैट मीन्स व्हाट? इट्स डेमोक्रेसी. नहीं,
नहीं तो अगर कुछ करना होगा तो कौन रिक कर सकता है इलेक्शन? जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पावर नहीं है, राइट? सो इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी डेमोक्रेटिक, राइट? ठीक है. देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, राइट? Undemocratic. 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 So it is what? Undemocratic, right? राइट, ठीक है. चलो कुछ ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? ठीक है ना. दैट्स इट. और नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, राइट? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? वैसे याद रख सकते हो, इट इज व्हाट? आरटीआई कब आया था? 2005 में आया था. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन यू रिमेंबर, राइट? सर्टेन एक्ट्स आर देयर. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बात करेंगे इसके बारे में, 2005 में आया था. बाकी जो पंचायती राज है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट, राइट? ठीक है. एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड. जस्ट मैं नोट शेयर कर दूंगा, जस्ट यू रीड इट आउट एंड okay, yes, and sorry for this a little confusion here. That is what representative democracy, right? Okay, fine, we will end the class here. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye bye.